بھارتی پنجاب سے آنے والی ہواؤں سے لاہور کی فضا مزید آلودہ ہو گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہے۔ شہر میں AQI کی شرح 292% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسموک صورتحال کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیں گے۔ سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمرا بتائیے گا۔ جی بالکل، اسموک کے حوالے سے بات کر لی جائے تو آج ہوائیں جو ہیں وہ مشرق سے جنوب مشرق کی سمت کی جانب جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور بھارت کی جانب سے بھی آلودہ ہواؤں کا رخ مسلسل لاہور کے علاقوں کی طرف ہے، جس سے لاہور کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر بات کر لی جائے تو لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، اور فضائی آلودگی کی شرح جو ہے وہ 292 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی اگر بات کر لی جائے تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آلودگی کی شرح 750 سے بھی زیادہ ہے، اور اس وقت سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 770 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ساندہ روڈ کے اطراف میں 718، برکی روڈ 610 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گلبرگ G3 میں 592، اسی طرح سے پنجاب یونیورسٹی کے اطراف میں آلودگی کی شرح 586 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صدر کینٹ میں 525، پیراگون کے اطراف میں 513، جبکہ DH فیز 8 کے اطراف میں آلودگی کی شرح 504 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے FC کالج کے اطراف میں آلودگی کی شرح 499 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دھواں اور آلودہ ذرات PM2.5 جو ہیں وہ مسلسل لاہور کی فضاؤں کا رخ کر رہے ہیں، جس سے آلودہ ذرات جو ہیں وہ فضا میں مولک ہونے کی بجائے زمین کے گرد جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ خشک موسم ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جس کے باعث دن بہ دن فضائی آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور ماہرین نے آگے جو ہے وہ فضائی آلودگی میں مزید اضافے کی پیشن گوئی بھی ظاہر کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا فاطمہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن کا NA 129 میں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن کرانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کی نئی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ کیا تاریخ مقرر کی گئی ہے، ڈیٹیلز جان لیں گے ابو بکر شیخ سے، بتائیے گا۔ بالکل جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور کے حلقے NA 129 میں ضمنی الیکشن کروانے کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کی نئی تاریخ کا جو اناؤنس کیا ہے، اس کے بعد لاہور کے حلقے NA 129 اور NA 66 وزیر آباد سمیت دیگر حلقوں میں بھی 23 نومبر کو جو ضمنی انتخابات ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل سیلاب کی وجہ سے یہ الیکشن ملتوی ہوئے۔ اس سے قبل 18 ستمبر کو الیکشن ہونے تھے، لیکن فلڈ کی وجہ سے یہ الیکشن اب 23 نومبر کو ہوں گے۔ حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف مرحلہ وار ایکشن پلان جاری کر دیا گیا۔ آرڈیننس کے تحت کارروائی کے آغاز کے لیے انتظامیہ کے لیے 30 روزہ ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے 7 دن میں ضلعی کمیٹیوں کی ترتیب اور تربیت مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہے۔ علی رامے سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کر دیا، لیکن آرڈیننس کے لیے اب 30 دن کا وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اس کو آپریشنل جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس میں 7 دن کے اندر جو ڈپٹی ریزولیشن کمیٹیاں ہیں وہ قائم ہوں گی، اور اس کے لیے تربیت جو ہے وہ دی جائے گی۔ تربیت اور ترتیب وہ بھی لازمی قرار دیے کہ 7 دن کے، اور 15 دن کے اندر بورڈ آف ریویو محکمہ خزانہ پنجاب جو ہے وہ تمام ریسورسز جو ہے پرووائڈ کرے گا متعلقہ اضلاع کو پورے پنجاب کے، کہ وہاں پر ان کے لیے آفسز جو ہے وہ قائم ہوں اور ان کو نئی جو سہولیات ہیں وہ وہاں پر فراہم کی جائیں۔ اور اس کے بعد پھر ہوگا ڈسپیوٹ ریزولیشن جو ٹریبیونل ہے اس کے اوپر ان کو قائم کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی 15 دن کا ٹائم دیا کہ 15 دن کے اندر اندر یہ ٹریبیونل جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے، اور اس سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی رابطہ کیا جائے گا کہ وہ ہر ضلع کے اندر ایک ریٹائرڈ جو جسٹس ہیں ان کو وہاں پہ تعینات کریں گے، جو ٹریبیونل کی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ تو ٹریبیونل کی ذمہ داریاں بھی یہی کہ 90 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے زمین کے حوالے سے۔ تو پہلے معاملہ ڈپٹی کمشنر آفس جو ہے ان کو ڈیل کرے گا، اس کے بعد اگر ڈپٹی کمشنر نہیں کر پاتا تو پھر ٹریبیونل کے پاس جائے گا۔ تو یہ اب 2 مختلف سیکٹرز ہیں، کمیٹیز ہیں۔ جی ٹھیک ہے، علی رامے آپ کا۔ محکمہ خزانہ نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 10 ارب جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے اسکول ٹیچرز کی تنخواہوں کا بجٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو 38 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ یہ بجٹ اسکولوں کے آپریشنل اخراجات اور اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ مزید جان لیں گے ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کوکر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ محکمہ خزانہ پنجاب نے جو ہے وہ فنڈ جاری کیے ہیں، اور سیلاب متاثرین کی جو امداد ہے اس کے لیے 10 ارب روپے جو ہے PDMO کو جاری کیا گیا ہے، اور اساتذہ کی تنخواہیں اور اسکولوں کے آپریشنل اخراجات کے لیے 36 ارب روپیہ جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو جاری کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ محکمہ خزانہ نے آن لائن کر دیا ہے، اور یہ دونوں بجٹ محکمہ خزانہ نے جاری کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ کیسے کوکر۔
खियाबानी फिरदौसी में सीवरेज तब्दीली मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। शादीवाल चौक से LDA यू टर्न तक रोड एसफाल्ट कारपेट कर दी गई है। शौकत खानम फ्लाईओवर से LDA यू टर्न तक ट्रैफिक बहाल हो गई है। मज़ीद जान लेंगे दुरे नयाब से, आगाह कीजिएगा। खियाबान फिरदौसी पर सीवरेज डालने के मंसूबे में दूसरी अहम पेशरफ्त हुई है। इससे पहले इस रोड को कई महीनों से बंद रखा गया था और पहली स्ट्रेच पर LDA ने शौकत खानम फ्लाईओवर से लेकर शादीवाल चौक तक कारपेटिंग करके सिविल रेस्टोरेशन के बाद उसको खोल दिया था। अब दूसरी स्ट्रेच जो थी वो शादीवाल चौक से LDA के सामने यू टर्न तक थी और इस पर पत्थर डाल के छोड़ा गया था। अब उसको भी कारपेट कर दिया गया है जिससे ट्रैफिक मज़ीद स्मूथ हो गई है। तीसरी स्ट्रेच पे जिसपे LDA चौक से LDA यू टर्न से आगे शौक चौक तक जा रहा है उस पर सीवर तेज़ी से डाला जा रहा है। इस पर प्रोजेक्ट की जो लाइन और लेंथ है अगर बात की जाए वो तो तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। LDA अपना पार्ट तेज़ी से कर रहा है। जैसे ही LDA को ये कुशन मिल रहा है कि सिविल रेस्टोरेशन के बाद उनको रोड दी जा रही है वो उस पर कारपेट करके आगे निकलता जा रहा है। लेकिन उसके पहले हिस्से में अगर बात की जाए जो काम वासा ने करना है कि पूरा कारपेट करने से पहले उन्होंने सीवरेज डालना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे बल्दियात ने रूल्स में तब्दीली कर दी। महकमे बल्दियात ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को वाटर डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का पाबंद कर दिया है। जो हाउसिंग सोसाइटी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएगी उसको NOC जारी नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है, कैसे कुकर से जान लेंगे, बताइएगा। महकमा बल्दियात ने रूल्स में अमेंडमेंट की है और ये अमेंडमेंट जो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के लिए की गई है। हर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो वाटर डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की पाबंद होगी। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वाटर ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल प्लांट नहीं लगाएगी उसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से जो गंदा पानी है वो वाटर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है उनको साफ़ करेंगी, साफ़ करके सरकारी ड्रेन में डालेंगी और गंदे पानी को गंदे पानी की हैसियत में सरकारी ड्रेन में नहीं डाला जाएगा। ये पाबंदी लगाई गई है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों पर और महकमा बल्दियात ने ये रूल्स जो है मंजूर किए हैं और LDA को और तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं उनको हदायत की गई है कि कोई भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी उस वक्त तक मंजूर ना की जाए जब तक वो वाटर डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाएं। ये लाजमी कर दिया गया है, इसके लिए रूल्स में अमेंडमेंट कर दी गई है और अब हर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। लेस्को के डेप्यूटी मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा के सर्विस रिकॉर्ड में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। लाइन सुप्रिटेंडेंट से लेकर डेप्यूटी मैनेजर के ओहदे पर तरक्की पाने की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी, आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के डिप्टी मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा के सर्विस रिकॉर्ड में संगीन किस्म की बेज़ाब्तगियाँ होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ फिनंशियल ऑफिसर को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर जो मेंबरान हैं उन पे मैनेजर S&I और उसके साथ मैनेजर डेवलपमेंट लेस्को जो हैं उनको शामिल किया गया है। और उसके साथ ये इंक्वायरी कमेटी को हदायत दी गई हैं कि 2007 में गुलाम मुस्तफ़ा को जब लाइन सुपरिटेंडेंट के तौर पर लेस्को में इंडक्शन की गई और उस वक्त उनको एक ग्रेड चेंज किया गया और ग्रेड चेंज करने के बाद उनको असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसपोर्ट की नशिस्त पर पोस्ट किया गया। तो इस बात की तहकीकात की जाए कि उसकी जो गुलाम मुस्तफ़ा जो कि इस वक्त ग्रेड 18 के डिप्टी मैनेजर यानी कि एक्सीएन की पोस्ट पर हैं, लेकिन कंपनी ने उनको मुअत्तल कर रखा है और चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस के दफ्तर में अटैच किया गया है और इसकी जांच पड़ताल की जाए कि आया कि लाइन सुपरिटेंडेंट से लेकर डिप्टी मैनेजर के ओहदे तक ये तरक्की किस तरह हुई है और किन किन ऑफिसर्स ने इनका साथ दिया, जिस पर ये। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा आपका। तहकीक व फ़रोग़ का मंसूबा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने असासा से रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल तलब कर ली हैं। रिसर्च प्रपोजल साल 2025-26 के लिए तलब की गई हैं। यूनिवर्सिटी हर फैकल्टी मेंबर को रिसर्च प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 3 लाख ग्रांट फराहम करेगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इमरान यूनस से, आगाह कीजिएगा। फ़रोग़ देने के लिए हर यूनिवर्सिटी अपनी फैकल्टी को रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका फराहम करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी रवा साल 2025-26 के लिए अपनी जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनको रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए रिसर्च प्रपोज़ल तलब कर ली हैं और ये रिसर्च प्रपोज़ल जो हैं ये साल 2025-26 के लिए तलब की गई हैं और फैकल्टी मेंबरान जो हैं उनको रिसर्च प्रोजेक्ट की तकमील के लिए
3 लाख रुपए जो हैं वो फराहम किए जाएंगे और उसके लिए ये प्रपोज़ल जो है वो तलब की गई हैं। लेकिन ये रिसर्च ग्रांट जो है ये सिर्फ तभी फैकल्टी को फराहम की जाएगी जब उनका रिसर्च प्रपोज़ल अप्रूव होगा। और इससे कबल जो है सिर्फ प्रोफेसर साहबान को रिसर्च प्रपोज़ल्स के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 3 लाख फराहम किए जाते थे। जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उनको 2.5 लाख, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार को रिसर्च प्रोजेक्ट काम करने के लिए जो है वो 2 लाख रुपए फराहम किए जाते थे। लेकिन रवा साल पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तमाम फैकल्टी मेम्बरान के लिए, तमाम फैकल्टी कैडर के लिए 3 लाख रुपए जो हैं वो मुख्तस कर दिए हैं। और यूनिवर्सिटी की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है फैकल्टी मेम्बरान को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च जी, बहुत शुक्रिया इमरान यूनस साहब का। यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि रिंग रोड वज़ियाला के रूट पर मशकूक गाड़ियाँ दाखिल होने का वाक़या। एक रोज़ कबल वज़ियाला की रूट पर 3 गाड़ियाँ दाखिल हुई। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वज़ियाला पंजाब गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट से जाती उम्रा जा रही थी। रिंग रोड आशियाना इंटरचेंज के करीब 3 गाड़ियाँ रूट पर आई। रिंग रोड पुलिस ने तीनों गाड़ियों के चालान कर दिए थे। गाड़ियाँ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले की भी की गई। पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल होने पर कार सवारों को छोड़ दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, जान लेंगे। आबिद चौधरी से बताइएगा। बिल्कुल, ये पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जाती उम्रा से एयरपोर्ट जा रही थी। रिंग रोड आशियाना इंटरचेंज के 3 गाड़ियां वज़ीर-ए-आला पंजाब के रोड पर आई और रिंग रोड पुलिस ने तीनों गाड़ियां राउंड अप करके चलान किया और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस राय के ये कहना है कि पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल होने पर कार सवारों को छोड़ दिया है। अलबत्ता अभी तक बताया जा रहा है कि इंटरचेंज मुकम्मल बंद ना होने के बाद गाड़ियां जो हैं वो रिंग रोड पर दाखिल हुई थी और बताया जा रहा है कि रिंग रोड पुलिस हुकाम ने गफलत बरतने वाले पुलिस पेट्रोलिंग अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ जुमेरात को होगा। तबलीगी इज्तिमा को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला 6 नवंबर को बाद असर शुरू किया जाएगा। मज़ीद जान लेंगे, शाहिद नदीम सिपरा से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ जुमेरात के रोज़ होगा और तबलीगी इज्तिमा को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला जुमेरात के रोज़ बाद असर होगा और दुआ जो है वो 9 नवंबर की सुबह होगी। जो इलाके पहले मरहले में शामिल किए गए हैं उसमें दीरबाला, बजोड़, चित्राल, सरगोदा और पेशाब के इलाके शामिल हैं। इसी तरह मियाँ वाली, जंग, सूबा सिंध में कराची के अलावा बाकी सूबा सिंध के इलाके, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और चकवाल के इलाके से जो परदंदान इस्लाम है वो पहले मरहले में शरीक हो सकेंगे। इसी तरह आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला जो है वो 13 नवंबर को शुरू होगा और इख्तितामी दुआ 16 नवंबर की सुबह होगी। दूसरे मरहले में जो इलाके शामिल किए गए हैं उनमें गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और चिन्योट के इलाके शामिल हैं। इसी तरह हाफजाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मंसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, कोस्तान, बहावलनगर, पिशाम, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, मर्दान, सवाबी और मालाकंड के इलाके शामिल हैं, जहां से जो फर्जंदान इस्लाम है दूसरे मरहले में शरीक हो सकेंगे। तबलीगी इज्तिमा के दोनों मराहिल जो हैं वो 6 नवंबर को शुरू होंगे और 16 नवंबर की सुबह जाके इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा आपका। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने का प्लान। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तरवीज के लिए महकमे बल्दिया की पंजाब काबीना को सिफारिशात इरसाल की है। मज़ीद जान लेंगे, राव दिलशाद हुसैन से बताइएगा। पंजाब हुकूमत का सफाई के हवाले से सुथरा पंजाब है, इस प्रोग्राम की तरवीज के हवाले से महकमा बल्दियात ने पंजाब हुकूमत को बाकायदा सिफारिश की है कि इस जो है वो प्रोग्राम को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके, जिसके लिए आलमी सतह पर होने वाली कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपोज और दीगर जो आलमी सतह के प्रोग्राम्स हैं उसमें जो है वो पंजाब की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मजीद तरवीज भी हो सके। आपको बताएं कि इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात ने बाकायदा सिफारिशात जो है वो पंजाब हुकूमत को अरसाल की हैं और पंजाब काबीना की मंजूरी जो ही होती है तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो मुमकिना तौर पर आलमी फोरम पर भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा सकेगा। आपको बताएं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव बताया गया वो ये है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वेस्ट मैनेजमेंट, माहौल दोस्त और प्लास्टिक फ्री पंजाब के आदाब पर तेजी से जिस तरह से काम किया गया है। राव दिलशाद हुसैन, अब 15 की कॉल पर पुलिस ने पहले पुलिस का ड्रोन मौके पर पहुंच जाएगा। आपको बताएं कि 5 की कॉल पर पुलिस से पहले पुलिस का ड्रोन मौके पर पहुंचेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने पुलिस ड्रोन्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद जान लेंगे, इरफान मलिक से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल आपको बताएं, लाहौर पुलिस की जानिब से और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से अब जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो जदीद टेक्नोलॉजी का ड्रोन होगा और 15 के ऊपर कॉल होने के बाद जो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेगा वो पुलिस का ड्रोन होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से आज जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इसका टेस्ट रन उसका आगाज किया जा रहा है। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इब्तदाई तौर के ऊपर जो 2 ड्रोन्स हैं उनका ये टेस्ट रन किया जाएगा और 15 किलोमीटर के रेडियस में जो सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस से लेकर 15 किलोमीटर का रेडियस होगा, वहाँ पे जो भी 15 की कॉल होगी उसके ऊपर रिस्पॉन्डर जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी का ड्रोन होगा। इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन वहाँ पे मौके पे पहुँच के जो वीडियो फुटेज है, वीडियो एविडेंस है, उसकी कलेक्शन करेगा। उसके साथ साथ तो पुलिस हुकाम को इस हवाले से जो है हदायत जो है वो उसको जारी करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी को, और उसके बाद ये ड्रोन जो है वो मौके से एविडेंस कलेक्शन करने के साथ साथ फुटेजेस जो है वो सेफ सिटी की ऑफिस है। आपका हाई कोर्ट यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की दरख्वास्त से जमानत पर नोटिस जारी हो गया। अदालत ने NCCIA को नोटिस जारी किया और मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। जस्टिस फारूक हैदर ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जानिब से इमरान रजा एडवोकेट पेश हुए हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की दरख्वास्त से जमानत पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने NCCIA को नोटिस जारी करते मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया।